बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाब। मैं हूं वसीम इरशाद। मेरे साथ हमेशा की तरह एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं मिस्टर बिशारतुल्लाह मलिक साहब, और आज के हमारे यूसीपी अलुमनाई गेस्ट हैं मिस सारा इजाज। बिशारत साहब, गेस्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, इंट्रो देना चाहते हैं? थोड़ा जो मैं जानता हूँ कि व्हाट शी इज़ डूइंग, वो मैं इनसे क्वेश्चन करना है। मैंने लिख के ले आया हूँ इसीलिए कि सारा, you are already into different types of jobs you're doing at your place, that is network standards, retail staff trainings and customer service, personal hygiene and grooming of the people, and safety and security as far as the total park is concerned, and customer experience. There's so many things which you are into. What it is? So it's basically that when we promise a brand image to our final customer as an organization, Total Parko, तो वो whatever we are promising our final customers, that when you visit our retail station, you will be treated like this, you will be entertained in a certain way, there will be a very professional, well-groomed, neat and clean person attending to you. तो उन सारी चीज़ों को make sure करने के लिए I am looking after the northern Pakistan for now, जिसमें ये होता है कि I visit the retail stations, I see how from a customer's point of view how they would feel coming to our retail station, और उसमें जितने भी कोई लूप होल्स होते हैं, जितनी भी कोई शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उनको फिर हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान पे आप जाते हैं? इट्स हाफ ऑफ पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात। लड़की होके मुश्किल नहीं लगता? नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट। मुझे इंटरसिटी ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे 4-4, 5-5 दिन के लिए रहना भी पड़ता है। एंड इनिशियली आई वाज अ लिटिल, इतनी कोई डरी भी तो मैं नहीं थी, बट आई थॉट बिकॉज दिस इज सोशल डिलेमा एंड परसेप्शन के शायद लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, बट आई have felt that I was more welcomed, I was warmly welcomed by people, and I was more respected, and I was taken care of by my organization as well, and by the people I was interacting with. थोड़ा सा organization के बारे में बताएं। It's a great place to work with, especially Total Parko. Total Parko, yeah, Total Parko Pakistan Limited. It's the number 2 oil company currently in Pakistan, and you are heading the training. I'm looking after the retail trainings. I look after the forecourt staff trainings, and I'm more of it's about maintaining a certain standard on my retail station. SOPs आपका काम है? हाँ, SOPs काम है। तो वो फिर forecourt staff जो हमारा final customer को deal कर रहा होता है, उनको ये बताना कि हमने अपने customer को क्या promise किया हुआ है, और उस promise को how do you have to fulfill. तो उस चीज़ को make sure करने के लिए I interact with them, I go to the stations, and I tell them what to do in a certain way. So is this the job you always wanted to do? I travel a lot think, and all these. Yeah, I've loved traveling. I've always wanted to be on my own. I've always wanted to be financially independent. I've always wanted to be known as an individual person and do things on my own. तो वो उस हिसाब से I think I'm pretty much there. This is how I've always wanted to be. And this is your first job, or there's a career path? No sir, there's a I've been working for I've been working for 8 years. जैसा आपने कहा कि हमेशा से ये चाहती थी, तो मुझे पता ही नहीं था क्या चाहती थी, to be very honest. I think वो बहुत से लोगों का हमारे मुल्क में मसला होता है कि we're not really aware of what we want out of life. We are thrown things are thrown at us, situations are thrown in, and we just have to make our way. So bachelor's, I did my bachelor's back in 2012. Then I worked as a teacher. I worked in a school for about 4-5 years. Then I thought कि ये बहुत monotonous हो गया है, ये नहीं करना मुझे. This is a very limited perspective. Though I loved it, I still miss it sometimes. But then I thought कि मुझे अपना masters कर लेना चाहिए. Then I did my MBA, and then I thought, luckily I got into Nestle for a while. ठीक है, there was this, वो 1 साल के लिए मैंने किया था. I couldn't pursue it. Then I got into Total Parko. And I've been working here since past 2 years for now, and it's going great. Nestle was amazing. I think the teaching experience was great. Starting के challenges क्या आए जो आपके? Starting के challenges मुझे लगता है कि अगर मुझे 8 साल लगे हैं to reach my the corporate path where I've taken the अभी initiative है, और अभी it's the first step, और अभी initial steps पे मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि to know exactly struggle एक्सटर्नल इतनी नहीं होती जितनी इंटरनल होती है समटाइम्स. ठीक है, हम लोगों को पता नहीं होता. Does this has to do anything with the gender? I think it goes both ways. I've seen men 40-50 years old who don't know what they're doing with their life, so I don't think it's just gender. Okay. I think it goes both ways, because awareness
इमोशनल अवेयरनेस, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें दोनों जेंडर्स के लिए, हाँ लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है इन दैट वे। कुछ चैलेंजेस शायद उनके लिए ज़्यादा हो जाते होंगे, कुछ चैलेंजेस शायद लड़कों के लिए ज़्यादा हो जाते होंगे, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं। तो वो आई थिंक इट गोज़ बोथ वेज। बट अगर आप स्ट्रगल की बात करें तो मुझे ये लगता है कि अपने अंदर जो हमें खुद पता नहीं होता ना कि हमने क्या करना है, या हमें व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू मेक अस हैप्पी, क्योंकि हम 2+2 का कोई फॉर्मूला लेके, तो देयर इज नो फॉर्मूला टू हैप्पीनेस, देयर इज नो फॉर्मूला टू सक्सेस, देयर इज नो फॉर्मूला टू एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन लाइफ। कुछ स्किल्स आप ले सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सब मिलके हाँ यू कैन बी हैप्पी। आपके थॉट प्रोसेस का बहुत ज़्यादा उसमें अमल दखल होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको हैप्पी सक्सेसफुल बनाती हैं। और इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ज़रूरी नहीं जो चीज़ मेरे लिए सक्सेस है वो किसी और के लिए भी हो, तो इट्स डिफरेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। बिशारत साहब की तरफ मैं आना चाहता हूँ। जो सारा ने अभी बात कही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से आई स्टेप्ड इनटू दिस, तो ये तो बड़े स्टूडेंट्स का है ड्रीम, तो कैसे ये हासिल किया जाए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और ये क्या है? मेल स्टूडेंट्स का तो होता ही होता है, फीमेल स्टूडेंट्स का भी ये ड्रीम होता है। एक्चुअली व्हाट शी वाज रेफरिंग टू, that is the female students, and luckily our religion says that a woman has got all the right to possess whatever, जायदाद भी हो सकती है, वो अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकती है, और वो सब चीज़ उसके पास हो सकती है। और this is wonderful, and this is a very satisfying feeling when somebody has got something of her own, and especially this is a problem in Pakistan with the girls. And what we are doing at the university level, we are trying to make female students also independent, and they should have all the right to play their role in the society. तो ये बड़ा ज़रूरी है और इसको परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल परस्यू करना चाहिए, और दे मस्ट प्ले देयर रोल इन लाइफ, और यही चीज़, यही इंकरेजमेंट और यही कॉन्फिडेंस उनके पास होना चाहिए। सारा की तरफ चलते हैं। सारा यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताएं, क्या थी UCP की जो लाइफ है, हाउ डिड इट हेल्प यू इन योर करियर, इफ सो? It was a long time ago. I don't remember the clear details, but I still remember having great teachers like Sir Basharatullah Malik. There were a few other teachers who were very helpful. जिनके साथ अब ऐसा तो नहीं आपने किया कि बिशारत साहब बैठे हैं तो नहीं, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो that is pretty much because of him, and that should tell you that we have a lifelong relationship. I'm in touch with him since past 10 years, so that means something. इसके अलावा आगा महमूद अली was a great teacher of mine. There was this Sadia Tariq teacher, she was there. So you know there were many role models. Yeah, she was in communication. There were many role models that we could look up to. हमारा उनके साथ बहुत close relationship था या नहीं था, but there were people we learned something or the other from. ठीक है? Then there were teachers like Sir Basharatullah Malik and few others जो who would at least listen to us. ठीक है? क्योंकि आप जब अपनी early 20s में होते हो, so you don't really have many people to talk to, and it's that age जहाँ पे आपको embarrassment का बहुत डर होता है। इस 10 साल जब गुजर जाते हैं तो you don't really care about what people think, but वो जब आप नए स्कूल कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी में आए हो तो आप पे एक बड़ा बर्डन होता है एक सर्टन इम्प्रेशन मेंटेन करने का। तो आई थिंक जब टीचर्स आपको वो एक सेफ जोन देते हैं टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू टॉक अबाउट योर स्ट्रगल्स, विच कुड बी एट होम, विच कुड बी इमोशनल, विच कुड बी साइकोलॉजिकल, विच कुड बी सोशल, तो आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ सो मच बर्डन ऑफ ऑफ यू, तो आप बाकी चीज़ों पे फिर फोकस कर सकते हो। सो आई फेल्ट दैट देयर वाज दिस the teachers were great here. Also, I was lucky to study in this same campus where we're sitting right now, and I remember that there was this great, there was this entire building associated to sports, and you know, you had a gymnasium, and then there was this huge library which I have yet to see in another institute in Pakistan, and then there was this food street which was always filled. So you know, so वो priorities थोड़ी सी आपको वो भी कि आपको जिम्नेजियम थोड़ा खाली मिलता था, थोड़ी सी भरी हुई लाइब्रेरी मिलती थी, एग्जाम्स में थोड़ी ज्यादा भर जाती थी, लेकिन आपको फूड स्ट्रीट हर वक्त फुल मिलती थी, and there was this cafe जहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं होती थी। Yes, it's a part of university life, and students must enjoy all parts of it. तो अभी सारा मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसा क्या करें कि they go on the right path of success?
ये जो प्रेशर होता है ना कि यही 4 साल है, एंजॉय कर लो, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ा ये है, तो लोगों को हर वक्त एक हमने एक टाइमलाइन, एक अलार्म क्लॉक उनके साथ बांध दिया हुआ है कि ये जल्दी जल्दी कर लो, इसके बाद जो है ना एक्सपायरी डेट है इस चीज़ की। तो उस प्रेशर में आके लोग इतने फार साइटेडनेस को जो है ना वो दे लैक। उसमें होता ये है कि आप इतने फ्यूचर फोकस्ड नहीं रहते हो। आप कहते हो कि अच्छा कल को दोस्तियां नहीं होंगी, ये दोस्तियां कल भी रहेंगी। जब आपके पास 4 पैसे होंगे, आपके पास नौकरी होगी, तो इन दोस्तियों को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। यही सोशलाइजिंग आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो अब भी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में टाइम होता है, करिकुलम, टीचर्स भी, इंस्टीट्यूट्स भी, सारी चीज़ों के साथ मिलके स्टूडेंट देमसेल्व्स they need to be future focused. They need to see कि हमारे वक्त की ज़रूरत क्या है. We can't really fool around all the time and there's no harm in having harmless fun. But उस एज में आपके relationships भी start हो रहे होते हैं, आपकी दोस्तियाँ भी बन रही होती हैं, आपकी लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, आपके breakups भी हो रहे होते हैं. So all that does not, आपको, मुझे जो लगता है कि जो टाइम आपको अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे, अपने गेन ऑफ नॉलेज पे और इन चीज़ों पे करना चाहिए, वो बच्चे थोड़ा सा मिस आउट कर देते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि दिस इज़ द राइट टाइम, कि ये प्रेशियस टाइम है जहां आप लोग जो है वो ज़्यादा सीख सकते हैं। यू डोंट हैव मच टू लूज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो यू कैन गेन क्वाइट मच अ लॉट। मैं बिशारत साहब की तरफ आना चाहता हूँ इसी पॉइंट को लेके। बिशारत साहब, स्टूडेंट्स फ्रूटफुल कैसे करें ये 4 साल, जैसे सारा ने बड़ा ज़बरदस्त हाईलाइट किया इस बात को। सारा ने बहुत कमाल बात कर दी है। नॉर्मली आई डोंट लिसन दिस थिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स और विद द एक्सपीरियंस व्हिच शी हैज़ गॉट, कि ये जो यूनिवर्सिटी टाइम है ना, दैट इज़ नॉट द टाइम फॉर डेवलपिंग रिलेशनशिप्स and thinking of marriage and this and that, because there is another thing, when you are in a position or you are established in your career, then that is the right time to think about it. और अमूमन ये होता है कि we do the wrong things at a wrong time. Yes. And when somebody gets involved in these things, well, normally he or she loses the focus. Or focus on studies and focus of learning, when it is lost, they are lost somewhere. And ultimately this does not result in most of the cases in a positive way. दूसरा ये है कि मैं तो इनको बच्चों को कहता रहता हूँ कि if at all there is any feeling, please postpone it. Yes. And let your parents know so that it is channelized. Or this is another area where we as a university, we should, and other universities as well, they should work very aggressively so that the students are guided upon this in this area. Sir, because that is the area where they lose their focus and they lose their what you call careers. Agree sir. और भी तो डायमेंशन है, चिल रहना, एक टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स की, चिल रहना और उसको टाइम को ज़ाया करना। ये बड़ी ज़बरदस्त हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट और गेस्ट ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि ये जो 4 साल हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। आप मौज मस्ती करें, आप फ़न करें, आप इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन फोकस पूरा रखें। जब आपका फोकस होगा तो आपकी सारी एक्टिविटीज़, यूनिवर्सिटीज़ के रिसोर्सेज, हर चीज़, रिलेशनशिप, उसके अकॉर्डिंगली आपके आगे चलेंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कही है। मैं सारा की तरफ आना चाहूँगा। सारा, mashallah, you're successful in your career. You have to see it from another perspective, another frame of mind. जो students का है, they see you as successful, and you are, mashallah. So what made you reach this position? Key factor, component, something? I think there are factors that are in your control, and then there are other aspects and factors that are not in your control. तो हम लोगों को थोड़ी सी जो बहुत से इंसान ये गलतियाँ करते हैं, मैंने भी की भी हैं, कि हम ना जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो अनकंट्रोलेबल, अनअवॉइडेबल होते हैं, उन पे फोकस करके वी कीप ऑन सेइंग कि गवर्नमेंट बड़ी ख़राब है, सोसाइटी बड़ी ख़राब है, यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाते नहीं हैं, मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं, मेरे बहन भाई लड़ते हैं। Problems are always there. You pick anybody, you pick anybody you want to be, एंड मुझे बता दें क्या उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो हम जब एक्सटर्नल, अनकंट्रोलेबल, अनअवॉइडेबल चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं तो हम अपना पर्सपेक्टिव लूज कर देते हैं, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन योर इनर स्ट्रेंथ्स, इनर वीकनेसेस, द अपॉर्चुनिटीज कमिंग आउट योर वे, जैसे हम सॉर्ट एनालिसिस करते थे किसी प्रोजेक्ट का, अपना थोड़ा सा सॉर्ट एनालिसिस करते रहें,
अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करते रहे, उन्हें और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपनी वीकनेसेस पे काम करते रहे, टू यू नो डील विद देम. यू डोंट रियली नेसेसरीली हैव टू गेट रिड ऑफ देम ऑल एट वंस. जो अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आ रही हैं उन पे फोकस करके उन पे काम करते रहें, रादर देन जस्ट सिटिंग देयर वेटिंग फॉर समथिंग. यू हैव दिस परफेक्ट पिक्चर इनसाइड योर हेड, और जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मैं उठ के काम नहीं करूँगा. जो अभी है, जो अभी कर सकते हैं वो प्लीज़ करें, जो चाहते हैं वो कभी ना कभी हो जाएगा. बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात कही है, और ये वो उसी तरफ आ रहा है कि फोकस अपना क्लियर रखें, डायरेक्शन अपनी सीधी रखें. बिशारत साहब आपकी तरफ आऊँगा फिर दोबारा से कि ये फोकस स्टूडेंट कैसे, आज टैब का दौर है, डिजिटल का दौर है, वो तो क्लास में बैठे उनका फोकस नहीं होता, तो ज़िंदगी के साथ फोकस कैसे करेंगे? एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ पता क्या है, मैं तो चीज़ों को ना जनरलाइज फॉर्म में बात करता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी सोचते हैं ना कि ये क्या करना चाहिए, तो पहले हम सोचते हैं कि यार ये काम करने के लिए तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, और हमारी सोसाइटी ठीक नहीं है, हमारे लोग ही अनपढ़ हैं, हम ये कोई चीज़ सीधी नहीं है, और जब तक ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, आप ठीक नहीं होंगे, सारा ठीक नहीं हो जाएगी, और पूरी गवर्नमेंट ठीक नहीं हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ. जब ये दूसरों को ठीक करने के इंतजार में बैठे रहेंगे तो फिर आप बैठे रहेंगे. द बेस्ट थिंग इज चेंज योर सेल्फ, एंड आई टेल यू, यू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड, द वर्ल्ड विल बिकम फ्रेंडली. वो आपके लिए लोग यानी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होना शुरू हो नेचर जाएगी, अल्लाह क्या वो कर देगा कि आपके काम शुरू हो जाएंगे, आप ऑनेस्ट हो जाएंगे, आप ऑनेस्ट लोगों से मिलना शुरू हो जाएंगे, आप धोखे देने छोड़ देंगे, आपको धोखा मिलना रुक जाएगा. एफर्ट करनी पड़ेगी, तो आपको पहले खुद को सीधा करना है. जो ही आप सीधे होंगे, और अच्छा दूसरी बात ये ना समझ, वही ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मैं उसको करूँगा. फॉर एग्जांपल दरख्तों की बात हो रही थी, मैं अभी सारा से भी बात कर रहा था कि जब दरख्तों की बात होती है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, उसको इतने अरब दरख्त लगाने चाहिए, फलाने को ये करना. ओ भाई, आप कितने लगा रहे हो? आप 1 लगा दो, 10 लगा दो, 2 लगा दो, वट एवर यू कैन डू, दैट इज बेटर देन थिंकिंग ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रीज. अपने हिस्से की क्षमा चलाते जाओ, अपने हिस्से की क्षमा, वो गवर्नमेंट का काम है, वो करे, लेकिन इस इंतजार में न रहो कि जब उनके 10 बिलियन ट्रीज होंगे फिर मैं पहला शुरू करूंगा, तो फिर आपसे कुछ नहीं होना. बिल्कुल ऐसे ही है. वी हैव टू लुक फॉर द चेंज इन आवरसेल्व्स एंड प्ले आवर पार्ट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट. प्रोग्राम के लास्ट हिस्से की तरफ चलते हैं. सारा सजेशंस क्या देना चाहेंगी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बड़े इम्पॉर्टेंट है. वो हमें फीडबैक जब मिलता है तो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि इस चीज़ ने हमें हेल्प आउट किया, ये सजेशन, और यही पर्पस हमारे प्रोग्राम का है कि स्टूडेंट्स जानें कि वो इस पोजीशन तक जैसे आप पहुंची हैं तो वो कैसे उस ऊपर जाएं. तो सजेशन आप क्या देना चाहेंगी? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you stop comparing your lives to somebody else, and you're not the only. You keep a reminder, you keep reminding yourself that you're not the only one with problems. People have it worse. Trust me, people have it worse. Yeah, I agree. Yeah. So if you start just keep on comparing your behind the mess with somebody's perfect picture on that display, it's never going to help you, it's never going to make you feel better. Yes. So, and motivation, like agar aapko self motivation chahiye hoti है and you feel very dull, have those days. It's okay to cry for a day, it's okay to stay in bed, it's okay to be not productive for a day, but you have to get up one day, no matter how much you take. आपको ही end पे you have to get up, take a shower, go out in the world and do something by yourself. Nobody is going to come and give it to you. So the sooner you start, the better. आप जितना वेट करेंगे, that's going to delay your process. आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से शुरू करें, जब भी शुरू कर लें. यू कैन स्टार्ट एट 40. अगर आप 40 पे बैठे हैं और आपने कुछ, तो यू स्टार्ट टुडे. इफ यू आर 15 एंड यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग फॉर अ गोल टुडे, स्टार्ट टुडे. देयर इज नो परफेक्ट टाइम और देयर इज नो राइट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द गोल और टुवर्ड्स द सक्सेस यू वांट टू अचीव इन लाइफ. बिल्कुल ऐसे ही है. बिशारत साहब, आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई लास्ट कमेंट करना चाहें? बस कमेंट यही है कि जैसे सारा की ज़िंदगी है, आई हैव सीन हर वर्किंग हार्ड, एंड मैं डे 1 से देख रहा हूँ. मुझे पता है कि जब उसने स्कूल में जॉब की, उसके बाद ख़ुद ट्यूशन सेंटर बनाया, ख़ुद पढ़ाया. दैट वाज अगेन अ सक्सेसफुल वेंचर व्हिच शी हैज़ नॉट मेंशन्ड ऑलरेडी. एंड देन शी जॉइंड टोटल पाको एंड देन शी ग्रू अप. ये सारी बातें एक वही है कि फोकस और अपने काम करते रहें
और लोगों के ऊपर अपने हकूक जताने की बजाय अपने जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दें, काम सेट हो जाएंगे, काम सेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे गेस्ट का, सारा एजाज, स्पेशल टाइम निकाल के आप हमारे पास आई, और मिस्टर बिशारतुल्लाह मलिक साहब हमेशा की तरह एक्सपर्ट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। देखते रहिए प्रोग्राम कामयाब। फिर मिलेंगे नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।